ہم نے کل ہی دیکھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی کچھ لیڈرز نے ایک پروٹیسٹ کیا گیا چھتا بل جو طبیلہ ہے اس کو لے کر. کئی ساری مانگیں ہیں وہاں سے. اگر وہاں کے لوکل ریپرزنٹیٹیوز کی بات کریں, وہاں کے لوگوں کی مانگ ہے کہ وہاں پر ایک کمیونٹی سینٹر آنا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شمیم فردوس جو MLA حبہ قدل ہیں. ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم نے دیکھا لگاتار کس طرح سے انہوں نے جو چھتا بل طبیلہ ہے اس کو لے کے کئی ساری میٹنگز کی تھی, بھلے پھر وہ عوامی آفیشلز ہوئے یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہوئے. کیا کچھ مسئلہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے ان سے. بہت شکریہ میم, وقت دیا آپ نے. تو بتائیں میم کیا ایشو کیا ہے یہ اور کس طرح سے کام چل رہا ہے اس پہ؟ اب اپوزیشن ایک نیا ہی مدعا اٹھا لیا ہے. نہیں, یہ اپوزیشن نے نیا مدعا نہیں اٹھایا ہے, یہ آلریڈی ایک مدعا ہے. وہاں پہ ایک جو آپ نے ذکر کی ہے طبیلہ کی, وہ ایک لینڈ ہے, کچھ مجھے لگتا ہے 15-16 کنال لینڈ ہوگا, وہ فری ہے, ویکنٹ لینڈ ہے وہاں پہ. تو جب ہماری سرکار آ گئی اور میں نے الیکشن جیتا وہاں سے, تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کی ایک ڈیمانڈ تھی جو کہ آج کی ڈیمانڈ نہیں ہے, وہ لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے. تو انہوں نے کئی بار جو پریویس گورنمنٹ تھی ان سے بھی کہا تھا کہ ہمیں یہاں پر ایک پلے گراؤنڈ چاہیے اور کمیونٹی ہال اور وغیرہ وغیرہ, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس لینڈ کو استعمال کرتے ہیں, یا تو کھیل کود کے لیے بچے استعمال کرتے ہیں, اور جب کسی کی شادی وادی ہو تو وہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو شادی بیاہ ہوتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اور جو عورتیں ہیں یا مجھے لگتا ہے جب مرد حضرات بھی صبح کے ٹائم وہ واک کے لیے اس پہ جاتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل جگہ ہے, وہاں پہ ٹریفک ویفک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ایریا ہے پسماندہ ہے, تو وہاں ان کے پاس اپنے جو صحن ہوتے ہیں, کمپاؤنڈ ہوتے ہیں مکان کے, وہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان سبھی جو 10,000 لوگ ہیں تقریباً وہاں پہ, تو ان کے لیے یہ ایک گراؤنڈ کی حیثیت رکھتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میم ہم نے کئی بار جو پریویس گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ ٹیک اپ کیا تھا, مگر نہ ہمیں پلے گراؤنڈ بنا اور رہے کمیونٹی ہال. پھر ممبر پارلیمنٹ جو رولا صاحب وہ بھی وہاں گئے, تو ان کے ساتھ بھی یہ بات اٹھی 2-3 بار. پھر میں نے پھر کہا ان سے, میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ کھیلے, میں یہاں پر. انہوں نے مجھے کہا آپ پچ وغیرہ بنا کے دے دیجئے اور یہاں سے تھوڑی سی ہمیں راحت ملے گی اگر فلنگ وغیرہ ہو, کیونکہ وہاں پہ بہت ہی گڈھے ہیں. تھوڑا ہی یہاں پر بارش ہوتی ہے تو وہاں پہ وہ گڈھے بھر جاتے ہیں, پھر وہ کھیل کود حصہ نہیں لے سکتے ہیں وہاں کے جو ایریا کے لوگ ہیں, بچے ہیں, یوتھ ہیں. میں وہاں گئی تو میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے رکھا 1 کروڑ روپے اس کے لیے. میں نے کہا اس میں یہ چیزیں بنائیں گے. لیکن جو ہی ہم نے شروعات کی وہاں سے کچھ وہ سیکورٹی فورسز آ گئے. جو لانگ بیک تھا, یہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ایک جنگی لینڈ تھا طبیلہ. وہاں پہ وہ جو شیپ وغیرہ ہے, مویشی, وہاں پہ ان کے طبیلے ہوتے تھے, تبھی اس کو بولا جاتا ہے طبیلہ. وہاں پر گائے بھینس وہ ان کی پرورش کرتے تھے. لیکن اس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ 20-25 سال پہلے یہ جب ٹوٹو یہ خالی کیا گیا تو ان کو اس کے بدلے میں ٹوٹو گراؤنڈ دیا. گورنمنٹ آف انڈیا کا وہ آرڈر بھی میرے پاس ہے جو سیکریٹری جو یہاں کے ہوم سیکٹر نے نکالا ہے کہ اب یہ لینڈ واپس دی جائے گی اسٹیٹ کو, اور اس کے بدلے میں ان کو ہم دے رہے ہیں ٹوٹو گراؤنڈ میں. لیکن اس کے بعد ٹوٹو گراؤنڈ سے بھی ان کو ایک اور لینڈ ملی اس کے بدلے میں, ٹوٹو گراؤنڈ کے بدلے میں, اور وہ ہے بڑگام سائڈ سے. وہاں پر جب ان کو ایک بہت بڑا احاطہ ملا تو انہوں نے اس کو باضابطہ قبضہ وبضہ کیا. تو اب تو نیچرلی یہ اسٹیٹ لینڈ ہے, اس کے بھی پیپرز میرے پاس ہے, جو انتخاب وغیرہ ہے جو کہ یہاں پر پٹواری وٹواری کا وہ سبھی پیپرز میرے پاس ہے. تو میں وہاں گئی, میں نے کہا ہم شروعات کریں گے. لیکن وہاں پہ وہ سیکورٹی والے آ گئے تو انہوں نے کہا نہیں میم یہاں پر ہم ان کو بنا کے دیں گے. میں نے کہا آپ بناؤ یا ہم بنائیں گے, آپ کیسے بناؤ گے؟ چونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سدبھاونا پروگرام ہے وہ اس کے تحت بنا. میں نے کہا نہیں, یہ چونکہ سنس دس از ناٹ یور لینڈ, یہ تو اسٹیٹ لینڈ ہے, تو اسٹیٹ میں ہمیں کچھ, تو میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوں, مجھے بھی موقع دیجیے, یہ ہم بنائیں گے. مگر انہوں نے بادہ ڈالی. پھر انہوں نے
उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। उन्होंने 2 मीटिंग्स का वहाँ पे रखा। अपना उनका ऑफिस है यहाँ तुलसी बाग के करीब हफ्त चिनार में। तो मैं वहाँ गई 2 बार वहाँ पे ऑफिसर से भी थे, कर्नल था और पता नहीं क्या मेजर थे, बहुत सारे लोग थे, तकरीबन 15 ऑफिसर से, हाई ऑफिशियल से दैट कम फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ ये अटेंड करने के लिए। तो इट वाज अ वेरी गुड मीटिंग। उनको मैंने समझाया, मैंने कहा इस तरह से ये स्टेट लैंड है, आप इस पे कब्जा नहीं कर सकते हैं, जो कुछ बनाना है हम बनाएंगे। चूंकि मैंने ये टेक अप मैटर किया था स्पोर्ट्स वालों के साथ भी, उन्होंने कहा ये हमें अलाउ नहीं करते हैं। तो मैंने कहा आप हमें अलाउ कीजिए, आप क्यों करते हैं, जबकि ये आपकी पोजीशन में भी नहीं है। लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, शादियां करते, तो आप कैसे इस पे अपना कब्जा जमाते हो। तो बात हो गई, उन्होंने कहा हम इस पे बातचीत, अब तो बातचीत हो गई, लेकिन हम मशवरा करेंगे, हम कोई बात नहीं, हम इस तरह से आपका भी टालेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम इनको जो आपकी ही वजह से, आपकी वसातत से वहां पर क्रिकेट फील्ड बनाएंगे। 10-15 दिन खामोश रह गई। मैंने वहां के जो लोग वो मेरे पास आए थे, मैंने उनसे कहा आप जाओ, आप खेलो, तो वो पिच विच मैं बनाऊंगी। रातों रात पता ही नहीं चला, उन्होंने सामान, बहुत सारा सामान वहां पे डंप किया और वहां पे काम शुरू किया, तारबंदी की, बारबुड वायर और उसके साथ फेंसिंग भी लाई थी वो देने के लिए। फिर मैं गई वहां 2-3 दिन के बाद मैं गई वहां पे। मैंने कहा ये कैसे आपने किया, जैसे कि आपने डिस्कशन किया मेरे साथ, प्रॉमिस किया है कि, और हकीकत यह है कि ये आपका लैंड नहीं है, आप कब्जा करते हो। तो कहा नहीं हम नहीं देने, नहीं मैम वो कीजिए। शर्मिंदा हो गई मगर अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने खाली लैंड देखा और वो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने बल्कि वहां पर एक ऑटो स्टैंड है, उन्होंने उस पर भी कब्जा किया था। अब मैं फिर वहां गई तो वहां हमने वो जो वायर से, बारबुड वायर, वो हमने उठवाए और मैंने उनसे कहा ये हम कभी नहीं देंगे, चूंकि ये इनकी अमानत है, ये पिछले तकरीबन 30 सालों से यहाँ पर उन्होंने वो ऑटो स्टैंड है, तो ये नहीं करेंगे। उस पर उन्होंने कुछ देखा, कहा ये गलती से हो गया है। तो अब मैंने चूंकि ये होम डिपार्टमेंट है और आपको पता है आजकल के हालात कैसे हैं, और जो हमारे एक्सेस है, जो हमारी रसाई है इस गवर्नमेंट की, वो कहाँ तक है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर जहां पर भी ये देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, पुलिस, इवन हमारी अपनी पुलिस, अगर मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा जहां पर भी खाली लैंड होते हैं ये वहां पर जाते हैं। कभी कहते हैं हमें चौकी बनानी है, कभी किसी जगह बोलते हैं हमें ऑफिस बनाना है। जैसे इन्होंने मेरा समझा है कि हमें होम डिपार्टमेंट इनके पास, चूंकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त है नहीं, हम जो चाहे वो करेंगे। अब मैंने कल ही सुना, शायद वहां पे वो अपोजिशन मेंबर भी गए थे, इसमें कोई ये बात नहीं, अगर उनकी वजह से भी उनको हिमायत मिलेगी तो वी अप्रिशिएट इट, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक सवाल उभरता है, इनको ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तब की प्रॉब्लम है 20 साल पहले की, जब इनको ये लैंड मिला, स्टेट को मिला है। इन्होंने बहुत दफा कोशिश की, इन्होंने जो यहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब थे, मुफ्ती साहब, उस वक्त भी जबकि बीजेपी और पीडीपी की सरकार जब थी, उन्होंने ये टेकअप उनके साथ किया है मौले वालों ने। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि होम इनके पास था और उस वक्त पुलिस भी इनके अंडर थी, होम भी इनके अंडर था, सारा कुछ इनके पूरी तरह से। और ये स्टेट था, ये यूटी नहीं, स्टेट था, और ये फुली पावरफुल, बहुत ही पावरफुल गवर्नमेंट थी उस वक्त, ये कर सकते थे और इनको सामने क्वेश्चंस भी नहीं आते। लेकिन अब इनके लिए मुझे लगता है वहां जाना ये शर्मिंदगी की है। मुझे खुद वहां के लोगों ने कहा, देखिए मैडम जी, तब नहीं आए, तब कोई फैसला नहीं किया जब ये सरकार में थे, तो अब क्या करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि हाँ, अगर इसके हाथों में है पोषण, क्या अगर है और अगर वो करेंगे, दिस इज वेरी गुड, हमें गरज है काम होने से। अगर इनकी वजह से उनको, वहां के लोगों को राहत मिलेगी तो हम इसकी अपोजिशन नहीं करेंगे, हम वेलकम करेंगे। लेकिन अफसोस है कि तब क्यों नहीं किया जब इनकी सरकार थी, तब क्यों नहीं किया जब होम इनके पास था, तब क्यों नहीं किया, पूरी तरह से क्यों नहीं, यहाँ वहां के लोगों के लिए कोई एमएलए भी इन्हीं का था।
उस वक्त ये इनको लोगों के लिए कोई राहत इन्होंने नहीं की, उनको कोई राहत नहीं मिली, न क्रिकेट स्टेडियम ही न मिला उनको, और न ही उनको मिला कोई कम्युनिटी हॉल, और न ही इसको पार्क्स बनाते, चिल्ड्रन पार्क बनाते, कुछ बनाते ताकि इससे हमें वहां के लोगों को राहत मिलती है। बहरहाल अब कोशिश करेंगे, देखते हैं कहां पर। यही एक बात नहीं है, अभी हमने परसों पेपर्स में पढ़ा है 1350 कनाल जमीन है निशात साइड से। मैंने इसमें न्यूज में देखा इन्होंने निशात साइड से यहाँ के जो मुझे लगता है एलजी साहब ने मंगवाई होगी रिपोर्ट, या दिल्ली वालों ने, कि ये लैंड इतनी खाली है तो हमें इसकी जो हकीकत है वो हमें दी जाए कि ये कौन सा लैंड है, वैकेंट है। अब देखिए, ये तो मुझे लगता है इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। आपको पता है निशात क्या है, शालीमार क्या है, हारवन क्या है, दाची गांव क्या है, वहाँ कितने हमारे जो यहाँ के कीमती जो एनिमल्स है, हांगुल है, जो यहाँ का असासा है। अगर वहां पे आर्मी कैंप्स बनेंगे, अगर वहां पे कुछ आर्मी अपने जो असरो रसूख से अपने अंडर वो सारी जमीनें, फिर कश्मीर के पास, श्रीनगर के पास क्या रहेगा? निशात कहाँ रहेगा? शालीमार कहाँ रहेगा? दाचिगाम कहाँ रहेगा? देयर इज नो डाउट। मैं आपसे कहती हूँ, हमें सिर्फ पता चला कि इस तरह से ये चाहते हैं कि इस लैंड पर कब्जा करें, ये करेंगे, हो सकता है, मगर यहाँ पे खून की नदियां जारी होंगी अगर ये इस लैंड को लेंगे, क्योंकि ये कश्मीरियों के लिए एक असासा है। ये जब मुगल यहाँ पे थे और उसके बाद जब यहाँ पे मुगलों ने बहुत कोशिश की इसको वो संवारे सजाए और इसको एक सेफ जोन दे। उसके बाद जब महाराजा थे उन्होंने भी कोशिश की इसको सेफ जोन रखे, महाराज ने भी इसको सेफ जोन ही करार दिया, और उस पे मकानात अलाउड नहीं थे, यहाँ तक कि वो जन्नत का एक नजारा था। अब हमारे हालात क्या हो गए, हमने कब्जा किया, गलत जमीन पे मकानात बनाए, बहुत सारे वाकयात, हादसात हो गए इस कश्मीर के साथ, खासकर श्रीनगर के साथ भी। लेकिन ऐसी जहां पर भी ये जमीन देखते हैं, अब आप देख लीजिए यहाँ बरजला बागात में, वहां पर भी एक खाली लैंड है, उस पर भी कब्जा करने के लिए ये आए, बहुत दफा ये आए हैं वहां पे, हमें कब्जा करना है, हमें यहाँ पर कुछ बनाना है, चौकी बनानी है, दफ्तर बनाना है, पुलिस का ऑफिस बनाना है। इट इज डिस्गस्टिंग। जहां पर भी ये लैंड यहाँ पे देखते हैं, वैकेंटली लैंड देखते हैं, जो यहाँ के लोगों का, जो कश्मीरियों की कश्मीरियत है, जो यहाँ का असासा है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। आखिरकार कब तक? आज तो ये इतनी जगह देखते हैं, तो कल तो ये हमारे घरों में भी घुसेंगे। ये जमीन खाली है, किसी के 2 कनाल होंगे, कहेंगे 1 कनाल हमें दे दीजिए क्योंकि इस कनाल पे हम कुछ बनाएंगे। तो इसलिए इनको ये तौर तरीका, अपना वतीरा बदलना चाहिए, इनको चेंज लानी चाहिए, और जो हकीकी मानों में जो हकीकत है वो इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे खामखा यहाँ के लोगों को परेशान करे इस एक बहाने से, कभी दूसरे बहाने से। अगर हकीकत देखेंगे कहाँ से इन्होंने लैंड नहीं लिया। आप गुलमर्ग जाइए, वहां पर क्या है हमारे पास, आप सोनामर्ग जाइए, वहां पर क्या है हमारे पास, सारा कुछ तो इन्होंने ले लिया। अब श्रीनगर पे भी इनकी नजर है। मुझे उम्मीद है कि ये एलजी साहब है वो इस पर खास कर कश्मीरियों पर नजरसानी करे और ये देखे कि इनके हुकूक क्या है, उनको सलब करने की कोशिश न करे। आपने सुना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर एमएलए हब्बा कदिल शमीम फिरदौस को, कई सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की। सबसे पहला तो जो इस वक्त छताबल में तबेला, एक ऐसा आर्मी का एरिया जहां पर डिमांड की जा रही है लोकल्स की तरफ से कि वहां एक कम्युनिटी सेंटर बने, एक क्रिकेट ग्राउंड बने। उसके बाद जिक्र हुआ है करीबन एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है जो निशात का एरिया है, वहां पर उसकी भी आपने देखा, निशात इजबर में जो लैंड का एरिया है उसका भी जिक्र हुआ है कि कहीं ना कहीं अब वो एरिया भी ना लिया जाए, क्योंकि उससे जो हमारी इकोलॉजी है वो डैमेज होगी, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो किस तरह से डैमेज होगी। और आखिर में जिक्र हुआ है बागात एमईटी स्कूल जो है वहां के ग्राउंड का, कहा गया है कि वो भी आगे ऑफिशियली होम डिपार्टमेंट के पास जाएगा, लेकिन अगर उसको इस वक्त नहीं रोका गया तो क्या पता कल कोई लोग हमारे घरों में घुस आए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कपूर।